जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jai Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jai Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Srila Prabhupada ki Jai जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रतक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्रीवाइन ग्रथभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktira Bhavati Naishtaki. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yukta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tvam Sajivam Sadhavetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padana Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauni Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine Shri Varshabhanavi Devi Daitaye Kripavdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha Madhurya Ujjvala Premabdya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Deenatarine Rupanugga Virugya Apsiddhanta Dhvantaharine Namo Gaura Kishoraya Sakshad Vairagya Murtaye Vipralambara Sambodhe Padhambujhayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaur Shakti Swarupaya Rupanugavarayate Gauravirbhava Bhumiswam Nirdeshita Sajjan Priyaha Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathayate Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyev cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate
कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्व आत्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रय सुभद्राय श्री जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जयतां सुरतार्पङ्गुर्मम मंदिरमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदनमोहनौ। दिव्यवृन्द अरण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ शतराधा श्रीमद्गोविन्ददेवो प्रतिष्ठिली सेव्यमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवरतटस्थितः कार्शनवेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियास्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान व्रजेशस्तद्धाम वृंदावनम रम्या कश्चिदुपासना वधूकल्पेनवर्जिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमो श्रीचैतन्य महाप्रभुर्वतमिदं तत्रोदरो नापरा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज़ क्लियर है? साउंड ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप सब तो पहले आ चुके हैं, आप लोग कितने लोग पहले फर्स्ट आ चुके हैं ना सब लोग? आपको ठीक है, ओके। तो आज का जो हमारा सेशन है, टॉपिक है शैडो एंड सब्सटेंस। तो डिस्कवर योर सेल्फ का ये सीरीज़ चल रहा है, उसका 5वां सेशन है आज। आप में से किसी ने पहले अटेंड किया है DYS, तो ये 5वां सेशन है आज, सब्सटेंस एंड शैडो या शैडो एंड सब्सटेंस। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझने वाली है कि इस भौतिक जगत के अंदर, इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हम लोग किसी ना किसी चीज़ की तरफ जो है अट्रैक्ट होते ही हैं। हम सब लोग किसी ना किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्शन से बाद में अटैचमेंट आता है। तो आप लोग ये बताइए कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि सब्सटेंस और शैडो, इनमें से हम किससे जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, सब्सटेंस से या फिर शैडो से? आप बताइए। सब्सटेंस से। तो आप लोगों ने जैसे पहले के टाइम पे किशोर कुमार का एक गाना है, आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। किसी ने सुना है गाना आपने? ठीक है, तो इसमें ये बात मतलब ऐसी जगह की बात हो रही, तो क्या कोई ऐसी जगह रियल में एग्जिस्ट करती है? तो इस बारे में हम आज जो है एक मेन हमारा टॉपिक का इसी इर्द गिर्द रहेगा। एक तो ये चीज़ है, और जैसे आपने सब लोगों ने बताया कि सब्सटेंस से जो है हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो बेसिकली शैडो जो है, शैडो मतलब परछाई, और सब्सटेंस का मतलब बेसिक मटेरियल। तो ओके ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो सब्सटेंस से और शैडो, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग देखिए, तो जितने भी लोग यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में, जैसे मैंने बताया कि हम लोग किसी ना किसी चीज़ से अटैच जो है वो रहते हैं। तो बेसिकली हर व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे इंसान में व्यक्ति की क्वालिटीज़ देख के उससे अट्रैक्ट होता है। तो क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, कोई बहुत अमीर है, तो उसकी वेल्थ से जो है अट्रैक्शन होती है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो उसकी स्ट्रेंथ से हमें जो है अट्रैक्शन होती है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस है तो उसकी फेम से हमें अटैचमेंट होती है या अट्रैक्शन होती है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है तो उसके ज्ञान से, उसकी नॉलेज से, उसके नॉलेज देख के। और अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जो है, जैसे मैंने बताया, वैरागी है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा त्याग है, तो उसके वैराग्य को देख के कि ये इतना सारा लोग जो है पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इसको तो इन चीज़ों में से कोई भी चीज़, जैसे मंक्स होते हैं, साधु है, तो उन सब चीज़ों को छोड़ के तो उसके वैराग्य के पीछे जो है हमें अट्रैक्शन होती है। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि ये अट्रैक्शन जो है इसका कॉज क्या है बेसिकली। तो बेसिकली सब लोग जो है वो सब्सटेंस से जो है, जैसे हमारा टॉपिक है, सब्सटेंस के अराउंड जो है वो रहते हैं, और सब्सटेंस की व्यक्ति की क्वालिटी से हम लोगों की अट्रैक्शन होती है। शैडोज़ के अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती। शैडो जो है एकदम ब्लैक है,
रिफ्लेक्शन है। ये प्रो ही कर दिया इसको, ठीक से लगा लो। बीड बैग में इसको रहने दो, इसको ऊपर लगा लो, इसको ऊपर लगा लो। इसको लग जाएगा बस। कब जो आपको कंफर्टेबल वैसे लगा तुम्हें? लगा लो। कर रहा है यहाँ से, आप सेट कर लीजिए ज़्यादा। मेरे को पता नहीं चलेगा ना प्रो। ठीक है, देखो चेक करो। कंफर्टेबल है। हाँ नहीं कंफर्टेबल है, ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हम लोग व्यक्ति की क्वालिटीज़ से जो है हम अट्रैक्ट होते हैं। तो इस सेशन में और भी जो है एक और टॉपिक रहेगा कि कहाँ पे हमें अपना अटैचमेंट और अट्रैक्शन जो है लगाना चाहिए, तो वी कैन एक्सप्रेस, और या तो हम लोग जो है रियल हैप्पीनेस को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कहाँ पे हमें अपना अटैचमेंट और अट्रैक्शन लगाना चाहिए और कहाँ पे हम गलत जगह पे लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कुछ भी चीज़ बोलने से पहले हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर मैं कोई चीज़ बोलूँ या हम लोग जनरल पब्लिक में हम कोई भी चीज़ बोले तो हमारी बात का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मान लो कोई लॉयर है, तो लॉयर भी अगर आपने देखा होगा पहले के कोई मूवीज़ में आपने देखा होगा कभी लॉयर को कोर्ट केस वगैरह चलता है तो अपनी स्टेटमेंट का जो है और वज़न बढ़ाने के लिए वो लोग कोर्ट करते हैं कि आईपीसी के धारा 302 ऐसे समथिंग वो कोर्ट करते हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वो लोग कोर्ट करते हैं। तो जब उससे क्या होता है कि वो लॉ बुक्स से जब कोट कर रहे हैं तो लॉ बुक्स का एक वैल्यू है, एंड जब वो रेफरेंस दे रहे हैं तो रेफरेंस से उनकी बात का और प्रमाण बढ़ता है। तो सिमिलरली हम अगर अपनी कोई बात बोलेंगे तो उसका कोई इतना वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम स्क्रिप्चर्स से बात करेंगे, शास्त्रों से बात करेंगे, क्योंकि शास्त्र जो है वो भगवान की वाणी है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति आजकल के टाइम पे आपको देख रहे होंगे कितने लोगों का यूट्यूब चैनल चल रहा है, कुछ भी लोग जो है बोल रहे हैं, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे स्क्रिप्चर्स क्या बोलते हैं, और स्क्रिप्चर्स से अगर हम बात करेंगे तो हमारी बात का वैल्यू है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट टेक्स्ट अवेलेबल ऑन दिस प्लानट अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने ये जो चीज़ है निकाली है कि ऋग्वेद जो है, मैं कहीं पढ़ रहा था, 10,000 BC ओल्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट ऋग्वेद का, 10,000 BC यानी कि लगभग 12,000 साल पुराना ऋग्वेद है। तो हमारे स्क्रिप्चर्स जो है इनका इतना वैल्यू है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, तो इस बारे में स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, तो हम आज शास्त्र प्रमाण से बात करेंगे, स्क्रिप्चर्स एकदम रेफरेंस लेके हम बात करेंगे। तो स्क्रिप्चर्स इस बारे में कहते हैं, भगवद गीता चैप्टर 15 वर्स 6 में भगवान कहते हैं, ना तद भाष्यते सूर्यो न शशंको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। भगवान बोलते हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6 वर्स के अंदर कि जो वो धाम है वहाँ पर ना ही सूर्य की ज़रूरत पड़ती है, ना ही चंद्रमा की ज़रूरत पड़ती है, ना ही अग्नि की ज़रूरत पड़ती है, ना इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है प्रकाशन के लिए, वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जो भी व्यक्ति एक बार उस धाम को जाता है वो कभी भी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। ये भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं भगवद गीता 15.6 के अंदर। और इसके अलावा एक और हम श्लोक ले सकते हैं, ब्रह्म संहिता के 5th ब्रह्म संहिता जो है वो वेदों का पार्ट है। ये 4 वेद है हमारे, किसी को नाम पता है आप में से वेदों का? 4 वेदों का बता सकते हैं आप नाम? 4 हमारे प्रमुख वेद है, तो उसमें से जो है यजुर्वेद का पार्ट है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता जो है वो ब्रह्मा जी की वाणी है, ब्रह्मा जी ने बोली है। तो ब्रह्म संहिता के चैप्टर 5 के वर्स 29 में ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैं इसको जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि संस्कृत श्लोक भी अगर मैं लूँगा साथ में इंग्लिश पे लूँगा तो टाइम का थोड़ा लिमिटेशन है, तो मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, ठीक है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, आई वर्शिप गोविंद द प्रिमेबल लॉर्ड द फर्स्ट प्रोजेनाइटर who is tending cows and yielding all desires in abodes built with spiritual gems। कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा, भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि धाम है, वृंदावन रम्य स्थाना दिव्य चिंतामणि धाम। तो चिंतामणि पत्थर से जो है भगवान का धाम बना हुआ है, और वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल आम का पेड़ होता है या अलग अलग चीज़ों के पेड़ होते हैं, भगवान के धाम में जो है कल्प वृक्ष जो है वो बने होते हैं। कल्प वृक्ष से वहाँ पे जगह जगह पे लगे हैं। कल्प वृक्ष का मतलब क्या है? कल्प वृक्ष का मतलब होता है डिज़ायर ट्री। आप उनसे कुछ भी मांगोगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई भी चीज़ जो है आपका कुछ भी इमेजिन करो वो आपको इच्छा आपकी पूरी कर देगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान के धाम में कल्प वृक्ष भी जो है वो जॉबलेस खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग जो है वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनको किसी भी चीज़ की इच्छा ही नहीं है भगवान के धाम के अंदर। आगे इसमें बताया गया, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम, हज़ारों हज़ारों लक्ष्मियाँ जो है वो भगवान के धाम में सेवा कर रही हैं, हज़ारों लक्ष्मियाँ।
बताया जाता है कि भगवान का धाम जो है इट इज़ द मोस्ट क्लीनेस्ट प्लेस वी कैन एवर इमेजिन, लेकिन फिर भी हज़ारों लक्ष्मियाँ वहाँ पर जो है झाड़ू लगा रही हैं, सेवा कर रही है, ताकि भगवान का अटेंशन जो है उनके ऊपर जाए। तो ऐसा जो है भगवान का धाम है। कहा जाता है भगवान के धाम के अंदर कोई भी जो व्यक्ति है वो चलता नहीं है। तो आप बोलेंगे उड़ता है, उड़ता नहीं है। भगवान के धाम में सब लोग नाचते हैं। कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, गाता है। सब लोग वहाँ पे नाचते और गाते रहते हैं। पागल है इसलिए नहीं, लेकिन हाँ भगवान के प्रेम में पागल है, तो रियल हैप्पीनेस है। तो ये चीज़ जो है भगवान के धाम के बारे में शास्त्रों में बताई गई है। और बहुत सारे रेफरेंसेस है, लेकिन हम लिमिटेड टाइम की वजह से मैंने आपको 2 रेफरेंसेस बताए। तो उसके बाद जो है अब ये चीज़ बताई गई है कि अब हम धाम के बारे में तो हम बात कर रहे हैं और हमने क्वालिटीज़ के बारे में भी बात करी, लेकिन ये बात है कि शास्त्रों के अकॉर्डिंगली हमें भगवान किसको मानना है, भगवान जो है हम किसको मान सकते हैं। वरना आजकल के टाइम पे जैसे चल रहा है, कोई व्यक्ति मान रहा है साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान। किसी ने साईं बाबा को भगवान बना दिया, किसी ने खाटू श्याम को भगवान बना दिया, किसी ने अपने गुरुजी को भगवान बना दिया। तो भगवान जो है किसी को भी लोग बना रहे हैं, पर शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंगली कौन व्यक्ति है जो कि भगवान कहलाने के योग्य है। तो विष्णु पुराण से एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, विष्णु पुराण के कैंटो 6 चैप्टर 5 वर्स 47 के अंदर 6.5.47 में। इसमें ऐसा आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यस्याश्रया ज्ञान वैराग्य योगश्च स्नानम भागतिरंतता। इसमें कहा जाता है कि भगवान वो है जिसमें भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, क्वालिटीज़, और वान का मतलब होता है द वन हु पोजेसेस देम। तो जो व्यक्ति 6 मेन क्वालिटीज़ बताई गई हैं, 6 क्वालिटीज़ को अपने अंदर पोजेस करता है एट वन टाइम, एक समय में, और वो भी दैट टू अनलिमिटेड कैपेसिटी एंड दैट टू फॉर टाइम इमेमोरियल, उस व्यक्ति को हम भगवान मान सकते हैं। अभी 6 क्वालिटीज़ कौन सी है इसमें बताया गया है। सबसे पहले वेल्थ, दूसरा बताया गया है स्ट्रेंथ, तीसरा है फेम, चौथा है ब्यूटी, पांचवा है नॉलेज, और छठा है रिनंसिएशन। तो ये 6 यानी कि वैराग्य, 6 क्वालिटीज़ जो है ये बताई गई हैं। अगर ये 6 गुण किसी एक व्यक्ति के अंदर प्रेजेंट हो एक ही टाइम में, और दैट टू अनलिमिटेड क्वांटिटी तक, और वो भी टाइम इमेमोरियल तक, कभी घटे ना, तो उस व्यक्ति को हम भगवान मान सकते हैं। तो हम इन क्वालिटीज़ पे वन बाय वन जो है चर्चा करेंगे। देखो किसी व्यक्ति के अंदर, किसी में एक क्वालिटी, कोई व्यक्ति अगर सुंदर है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पावरफुल हो। कोई व्यक्ति अगर पावरफुल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नॉलेजेबल हो। कोई व्यक्ति अगर नॉलेजेबल है तो हो सकता है कि उसको अपनी नॉलेज से अटैचमेंट हो, रेनेंशिएट नहीं हो। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें 6 की 6 क्वालिटीज़ एक साथ हो, वो बहुत ही रेयर है। और अगर 6 क्वालिटीज़ एक साथ है भी, लेकिन फिर भी हम ऐसा देखते हैं कि आज क्वालिटी है लेकिन कल नहीं है, आज सुंदरता है कल नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि बॉलीवुड के एक्ट्रेस, 80s के एक्ट्रेस, मान लो अमिताभ बच्चन, जैसे 80s में था वो आज वैसे नहीं है। रजनीकांत जैसे पहले थे वैसे आज नहीं है। तो ब्यूटी जो है वो डिक्लाइन करती है। पैसा भी आज किसी के पास है कल नहीं है। लेकिन भगवान हम उसको मानेंगे जिसके पास ये 6 क्वालिटीज़ जो है वो टाइम इमेमोरियल तक रहेगी। जब आज भी है, पहले भी थी और कल भी रहेंगी, तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, और वो भी अनलिमिटेड कैपेसिटी तक। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ब्यूटी के ऊपर। तो भगवान के बारे में क्या बताया गया है शास्त्रों के अंदर कि भगवान कितने सुंदर है। तो श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, कैंटो 9 चैप्टर 24 वर्स 65। ऐसा श्लोक है, करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वातस्य पत्रस्य पुते शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान के जो चरण हैं, भगवान के जो हाथ है, भगवान का जो मुख कमल है, उनको लोटस से कंपेयर किया गया है। एक्चुअली जितने भी मटेरियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स है, इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती भगवान के साथ में। लेकिन अब हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, जैसे लोटस है। लोटस जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, तो इसीलिए हम उनको कंपेयर कर देते हैं। लेकिन कंपैरिजन एक्चुअली हो नहीं सकता भगवान का की सुंदरता का किसी भी चीज़ के साथ में। बताया जाता है कि जितनी भी इस दुनिया के अंदर सुंदरता है, वो भगवान की सुंदरता के ड्रॉप मात्र के बराबर, एक बूंद के मात्र के बराबर भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम लोग कंपैरिजन के लिए बोल देते हैं। तो बताया गया भगवान की जो सुंदरता है, भगवान के हाथ, भगवान के जो चरण कमल है, भगवान का जो फेस है, वो कमल के समान जो है कंपेयर करके बताया गया है। और कितनी सुंदरता है भगवान की कि शिव जी, आपने कितने लोगों ने जो है मोहिनी मूर्ति की कथा सुनी है, भगवान के मोहिनी अवतार की। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय पे जो है, आपको सुना होगा वो स्टोरी में, उसमें डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन शिव जी ने जब विषपान किया, फिर अमृत आया,
तो अमृत जब आया तो उस समय पे जो है शिव जी अपना विषपान करके चले गए। फिर देवता एक तरफ, असुर एक तरफ, उनके बीच में अमृत के लिए जो है लड़ाई हो गई। तो आपने पूरा स्टोरी सुना होगा कि उसके बाद जो है भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप लिया। मोहिनी मूर्ति का रूप लेके भगवान ने जो असुर थे उनको बेविल्डर कर दिया, और उसके बाद में देवताओं में जो है वो पूरा स्टोरी आपको पता है। अब स्टोरी जब ये चीज़ खत्म हो गया, लीला समाप्त हुई, तो शिव जी को पता चला कि भगवान ने जो है स्त्री का जो है अवतार लिया है, स्त्री फॉर्म में भगवान प्रकट हुए हैं। तो उसके बाद शिव जी जो है भगवान के पास गए, उन्होंने बोला कि मुझे भी आपके इस रूप के दर्शन करने हैं। तो जो शिव जी, भगवान ने बोला कि आप श्योर हो, आप दर्शन करना चाहते हो? तो शिव जी ने बोला हाँ हाँ मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने, ये श्रीमद् भागवतम के अंदर ही आता है, तो जब भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप लिया तो शिव जी सब कुछ भूल गए कि ये भगवान है, और इतना उनके प्रति अटैच हो गए, इतना उनके प्रति अट्रैक्ट हो गए कि उनके पीछे भागने लगे, मोहिनी मूर्ति के पीछे। पार्वती मैया देख रही है कि मेरे पति, जो कि योगियों के इंस्पिरेशन है, सब योगी जो है शिव जी के ऊपर ध्यान लगाते हैं और शिव जी से इंस्पिरेशन लेते हैं अपने ब्रह्मचर्य के लिए, वैराग्य के लिए, वो जो है पर स्त्री के पीछे भाग रहे हैं। तो इतना सुंदरता है भगवान का। और श्रीमद् भागवतम में इसी में श्लोक आता है, शिव जी बोल रहे हैं कैंटो 8 चैप्टर 12 वर्स 32 के अंदर, बोल रहे हैं आई एम सर्टनली नॉट एबल टू ईजिली अफेक्टेड बाय एनी वुमेन। मैं किसी भी स्त्री के प्रति आसानी से आकर्षित नहीं होता। आई एम ऑलवेज विद गॉडेस दुर्गा, मैं हमेशा पार्वती मैया के साथ में रहता हूँ। बट आई एम स्टिल कैप्टिवेटेड बाय दिस वुमेन हु मूव्स हर आईब्रोज सो प्लेफुली, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। ये शिव जी की स्टेटमेंट है श्रीमद् भागवतम के अंदर। वो मोहिनी मूर्ति जो भगवान का स्वरूप है, उसको देख के इतना जो है अट्रैक्ट हो चुके हैं, इतना ज़्यादा जो है आकर्षित हो चुके हैं। तो सोचिए कि भगवान की सुंदरता किस लेवल पे होगी। पहला हमने क्वालिटी ली सुंदरता, दूसरा जो है वेल्थ, यानी कि पैसा। तो कोई व्यक्ति जो है इस दुनिया के अंदर, कोई व्यक्ति लखपति हो सकता है, कोई व्यक्ति करोड़पति हो सकता है, कोई व्यक्ति अरबपति हो सकता है, लेकिन भगवान क्या है? भगवान लक्ष्मीपति है। तो जितना भी आप ऐश्वर्य देख रहे हैं, जितना भी आप पैसा देख रहे हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, जितने भी है, सबके पास जितना भी धन है, उन सबका सोर्स कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी से जो है सबका सब आ रहा है, और वो लक्ष्मी जी जो है वो कंटिन्यूअस जो है भगवान की सेवा करते रहती है, कंटिन्यूअस भगवान के चरणों की सेवा जो है वो करती रहती है। तो लक्ष्मी जी जो है श्रीमद् भागवतम 10:59-23 में आ रहा है, इसमें बता रहे हैं द डस्ट ऑफ कृष्णाज लोटस फीट इज वर्शिप्ड बाय लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ फॉर्चून हु सर्व्स हिम एज द लॉर्ड ऑफ ऑल वेल्थ। तो भगवान के चरणों की जो धूल है वो लक्ष्मी जी जो है उसकी उपासना करती है। तो ये भगवान का स्तर है कि लक्ष्मी जो सब वेल्थ का सोर्स है, वो भगवान के चरणों की उपासना कर रही है, और चरणों की नहीं, चरणों की रज की उपासना कर रही है। तो इससे हमको अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि भगवान कितने ऐश्वर्यवान हैं, कितना जो है भगवान के पास वेल्थ है। सारा वेल्थ का सोर्स ही जो है वो उनकी सेविका है। तो उसके बाद आता है ज्ञान। ज्ञान जो है, अब उस भगवान के पास, भगवान का कितना ज्ञान है, क्या ज्ञान है, उसके लिए भगवान खुद ही भगवद गीता में बता रहे हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्य सर्वैरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। भगवान बता रहे हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, कि मुझसे ही स्मृति आती है, मुझसे ही सारा ज्ञान आता है। जितना भी ज्ञान है सब मुझसे ही आ रहा है, और जितने भी वेद है, वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं हूँ, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना है, और वेदांत भी मैं हूँ। तो भगवान के द्वारा ही जितने भी नॉलेज है वेदों की, उसका क्रक्स क्या है? भगवान को जानना, और सब नॉलेज का सोर्स जो है वो भगवान है। तो ये हमने जाना, 3 क्वालिटीज हमने ले ली नॉलेज के बारे में। चौथा जो है वो है स्ट्रेंथ, कि भगवान में कितना स्ट्रेंथ है, कितना पावर है। तो गोवर्धन लीला के बारे में आप सबने सुना है, 7 वर्ष की आयु में भगवान ने जो है गोवर्धन धारण किया। तो आप सोचिए, और गोवर्धन ऐसा नहीं है कि भगवान धारण कर रहे तो उनको बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एक बार ऐसे श्रील प्रभुपाद जी, उनके एक भक्त थे, तो उन्होंने भगवान की गोवर्धन धारण की एक चित्र स्केच बना के लेके आए। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि भगवान के बहुत सारे मसल्स है, बहुत ज़्यादा जो है, उनको लगा कि भगवान में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो बहुत ज़्यादा मस्कुलर जो है उन्होंने भगवान को बनाया। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि भगवान को गोवर्धन उठाने के लिए उन्हें मसल्स होने की ज़रूरत नहीं है, सारा जो स्ट्रेंथ है, जितना भी बल है, उसका जो सोर्स है वो भगवान है। और अपनी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के नाखून के ऊपर भगवान ने जो है गोवर्धन धारण किया। तो इससे आप इमेजिन लगा सकते हैं, अगर हम में से कोई व्यक्ति है, और जितने भी आजकल ये मार्केट में घूम रहे हैं गुरुजी, बाबा जी, अगर इनको आप इनमें से किसी को बोले कि आप गोवर्धन छोड़ो,
आप 7 दिन 7 रात एक जगह पर खड़े होकर दिखा दो। तो नहीं ऐसा नहीं, तो 7 दिन 7 रात जो है आप किसी एक जगह पे खड़े होकर बता दो, तो क्या व्यक्ति पॉसिबल है? कोई चीज़ आप रहने दो, आप कुछ उठाना छोड़ दो, आप बस एक जगह खड़े होकर बताओ, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान गोवर्धन धारण कर रहे हैं 7 दिन 7 रात तक। और साथ में ये भी बताया गया है भगवद गीता के चैप्टर 10 वर्स 36 के अंदर भगवान बता रहे हैं कि आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जितने भी बलवान लोग हैं इस जगत के अंदर, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो मैं हूँ। तो जितनी भी स्ट्रेंथ है वो भगवान से ही आ रही है। इसमें रख दो। तो ये हमने चौथा जो लिया क्वालिटी वो है स्ट्रेंथ। पांचवी क्वालिटी जो है वो है फेम। तो भगवान कितने फेमस है। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं होगा जो भगवान को नहीं जानता। भले ही वो कृष्ण के नाम से जानता है, वो अल्लाह के नाम से जानता है, वो जियोवाह के नाम से जानता है, जीसस के नाम से जानता है, लेकिन भगवान को तो सब जानता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो नहीं जानता। इवन एथियस्ट भी है, नास्तिक भी कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो भगवान को जानता है। और ऐसा कोई तो चीज़ है जिसको, देखो किसी चीज़ को नाम मानने के लिए उस चीज़ का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं मोदी जी में नहीं मानता, पर मोदी जी है तो मैं उनको नहीं मानता। तो भगवान है इसीलिए वो उनको नहीं मानते। तो इवन एथियस्ट भी, नास्तिक लोग भी जो है वो भगवान को मानते हैं। तो कितने फेमस जो है वो भगवान है। फिर छठा क्वालिटी जो है वो है रेनन्सिएशन, वैराग्य। तो महाभारत का युद्ध हुआ तो सब लोगों ने जो है युद्ध किया, सब लोग जो है युद्ध कर रहे थे। तो भगवान ने क्या पोजीशन एक्सेप्ट किया? भगवान जो है वो अर्जुन के चैरियट ड्राइवर बने। रथ जो है भगवान ने अर्जुन का चलाया। वरना अगर भगवान चाहते तो युद्ध कर सकते थे, लेकिन भगवान ने जो है सबसे हम्बल पोजीशन लिया, भगवान ने रथ चलाया अर्जुन का। एक बार ऐसे एक भक्त स्टोरी शेयर कर रहे थे, बता रहे थे कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला था मुंबई में। तो उसने एक बड़ी सी गाड़ी थी रोल्स रॉयस की, उसको रोका। तो वहाँ पर उसने जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे उतरा तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन बैठा हुआ था। तो उसने अपने इंस्पेक्टर जनरल को फ़ोन किया, आईजी को फ़ोन किया। तो फ़ोन करके वो बता रहा है कि अरे सर आप जल्दी आइए, यहाँ पे बहुत बड़ी हमने पार्टी को पकड़ा है। तो उसने बोला अरे किसको पकड़ा है? तो उसने बोला अरे आप आइए तो सही। अरे बोल रहे आप तुम बताओ तो। बोले सर इतनी बड़ी पार्टी है, उसने अमिताभ बच्चन को ड्राइवर बनाया है अपना। तो ये चीज़ है कि भगवान जो है, मतलब अमिताभ बच्चन के बाद एक्चुअली उसने गाड़ी ली थी, तो उसने अपने ड्राइवर को कहा था कि मैं गाड़ी जो है ड्राइव करना चाहता हूँ। ठीक है। तो जब महाभारत का जब युद्ध हो गया ना, महाभारत के युद्ध के पहले आप में से कितनों ने खाटू श्याम नाम सुना है? बर्बरिक करके एक योद्धा थे। तो वो भीम के ग्रैंडसन है, मतलब भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरिक। तो बर्बरिक जो है उनको शिवजी से वरदान था, उनको 2 बाण शिवजी ने वरदान में दिए थे, और उन 2 बाण से जो है वो किसी मतलब पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे। तो जब भगवान उनके पास गए और उनको अप्रोच किया कि आप पांडवों की तरफ से युद्ध करो, तो उसने बोला कि नहीं, मेरी माँ ने मेरे को ऐसा कहा है कि जो भी साइड हार रही होगी आप उनकी तरफ से युद्ध करना। तो भगवान ने बोला ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने बोला अगर ये पांडव जीत रहे होंगे तो ये कौरवों के साइड से युद्ध करेगा, कौरव जीत रहे होंगे तो ये पांडवों के साइड से युद्ध करेगा, ऐसा तो युद्ध चलता ही रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान उसने बोला कि आप इसके अलावा मुझसे कुछ भी मांग लो। तो भगवान ने बोला ठीक है, अपना सर काट के जो है मेरे को दे दो। तो उसने उसमें इतना प्योरिटी था, उसने भगवान को अपना सर काट के जो है दे दिया। तो जब उसने बोला मगर भगवान मेरी इच्छा थी कि महाभारत का युद्ध हो रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने उनका सर एक जगह पर प्लेस कर दिया और बोला कि आप यहाँ से पूरा युद्ध जो है वो देख पाओगे। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध समाप्त होने के पश्चात जो है भगवान ने बस ठीक है सर, ठीक है। तो युद्ध समाप्त होने के पश्चात जो है सब लोगों ने बर्बरिक से पूछा, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो सब लोग जो है बर्बरिक के पास गए, उन्होंने बर्बरिक से पूछा कि आपने तो पूरा युद्ध जो है वो देखा है, तो आपके अकॉर्डिंगली इस युद्ध का रियल हीरो कौन है, असली जो है हीरो कौन है इस युद्ध का? तो बर्बरिक ने बोला एक्चुअली इस युद्ध के जो रियल हीरो है वो तो भगवान श्री कृष्ण है। मैं बाहर से ऐसा दिख रहा था कि बाहर से जो है ऐसा दिख रहा था कि युद्ध जो है वो बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो मैं देख पा रहा था भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है वो सबको मार रहा है। तो ये भगवान का पोजीशन है। तो हमने क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया कि 6 क्वालिटीज़ जो हैं वो व्यक्ति के अंदर होंगी
तो व्यक्ति जो है भगवान कंसिडर किया जाता है। और हमने फिर उसके बाद भगवान की क्वालिटीज़ के बारे में चर्चा किया। तो अब ये चीज़ हमको ये समझना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। हम लोग जो है आपने पिछले सेशन में सुना होगा कि हम जो है शरीर नहीं है, वो आत्मा है। हम जो है वी आर नॉट द बॉडी बट वी आर द सोल। और भगवान गीता में बोलते हैं 15.7 के अंदर ममय वांस्य जीवलोके जीवभूत सनातना, कि जीवात्मा जो है वो मेरा अंश है। तो भगवान का आत्मा जो है वो परमात्मा भगवान का अंश है। तो जैसे हम लिखते हैं कि हाथ है, ये हमारा हैंड है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हाथ का जो बेसिक फीचर है जैसे टू सर्व द होल बॉडी, पूरी बॉडी को सर्व करना इस हाथ का काम है। जैसे इसका बेसिक फीचर है खाने को उठाना, मुंह तक रखना, खाना मुंह से जो है पेट में जाएगा और पूरी बॉडी जो है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी, इंक्लूडिंग द हैंड। लेकिन अगर हाथ बोले कि नहीं, आई डोंट वांट टू सर्व द बॉडी, आई वांट टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली, तो क्या वो एंजॉय कर पाएगा? बोलेगा मैं खाना जो है अपने हाथ में रख लूँगा, अपने पास रख लूँगा, तो वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। उसका फीचर ही है शरीर को सर्व करना। वैसे पार्ट जो है उसका काम होता है होल को सर्व करना, तो वैसे ही आत्मा जो है उसका काम है परमात्मा को सर्व करना। तो इसलिए हम जब ये फीचर नहीं करते, इस फीचर को फॉलो हम नहीं कर पाते, तो जो है हम लोग जो है दुख पाते हैं। वी स्ट्रगल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम लोग भगवान से इंडिपेंडेंटली हम एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है जैसे चीनी है, चीनी का क्वालिटी क्या है? स्वीटनेस। जैसे नमक का क्वालिटी है सॉल्टनेस। जैसे कि पानी है, उसकी क्वालिटी है लिक्विडिटी या तरलता। वैसे ही आत्मा जो है, आत्मा की क्वालिटी शास्त्रों में बताई गई है कि आत्मा की क्वालिटी है टू सर्व एंड टू लव, सेवा करना और प्रेम करना, ये बताया गया है आत्मा की क्वालिटी। तो अगर हम लोग भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसी ना किसी की सेवा करेंगे। पति अपनी पत्नी की सेवा करेगा, जो नौकर है अपने मालिक की सेवा करेगा। अगर हम किसी की भी सेवा नहीं कर रहे तो इफ़ यू विल नॉट इवन सर्व गॉड, वी विल सर्व डॉग। लोग कुत्तों की सेवा करेंगे, कुत्ता लेके आ जाएंगे, उसको घुमाने निकलेंगे। और अगर एट द एंड किसी की सेवा नहीं करेंगे तो अपने मन की सेवा करेंगे, अपने मन की इच्छाओं को एंटरटेन करेंगे, अपने सेंसेस की सेवा करेंगे, अपनी इंद्रियों की सेवा करेंगे, लेकिन किसी ना किसी की सेवा हम करेंगे। तो जब हम लोग गलत चीज़ों में सेवा के उसमें लगे रहते हैं तो वी सफ़र। तो हमारा बेसिक फीचर जो है वो है भगवान की सेवा करना। तो जैसे कि अर्जुन है, अर्जुन का इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, लेकिन भगवान ने उसको बोला भगवद गीता में माम अनुस्मरण युद्धेश्च, कि तुम युद्ध करो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए और मेरी इच्छा के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम युद्ध करो। तो यही हमारा जो है बेसिक मूड होना चाहिए कि हम भगवान की जो है प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करेंगे तो जो है हम लोग जो है प्रसन्न रह पाएंगे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन भी यही है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। तो लेकिन हम इतना हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भगवान हम बोल रहे हैं कि भगवान की सेवा करनी है, लेकिन भगवान है कौन? ये तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि भगवान कौन है। अगर ये चीज़ क्लियर होगी कि भगवान कौन है, उसी से हम उनकी सेवा कर पाएंगे। जब पता ही नहीं है कि भगवान कौन है तो किसी को भी हम अपने मन मदक जो है मन मुताबिक भगवान मान बैठेंगे। तो शास्त्र, जैसे मैंने बोला कि शास्त्र से ही हम लेके चलेंगे। तो शास्त्र प्रमाण में ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म संहिता के पहले अध्याय 5वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर जो है बहुत सारे हैं, हम भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहे हैं किसी मिनिएचर फॉर्म में, लेकिन ईश्वर परमा कृष्ण, सुप्रीम कंट्रोलर जो है वो कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चित आनंद, यानी कि भगवान जो है सत मतलब इटर्नल, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद का मतलब होता है फुल ऑफ ब्लिस। तो सच्चिद आनंद के एक विग्रह है और भगवान सभी कारणों के कारण है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता के अंदर। शिव जी जो है पद्म पुराण में कह रहे हैं चैप्टर 3 वर्स 125 के अंदर कह रहे हैं आराधनानम सर्वेशम विष्णु और आराधनम परम। उनसे पार्वती माता जो है शिव जी से उन्होंने पूछा कि सब प्रकार की आराधनाओं के अंदर जो है कौन सी आराधना जो है परम आराधना है। तो उन्होंने इसका जवाब दिया आराधनानम सर्वेशम विष्णु और आराधनम परम। सब प्रकार की आराधनाओं में भगवान विष्णु की जो आराधना है वो सबसे परम आराधना है, ये शिव जी ने जवाब दिया। तो ऐसे तो बहुत सारे श्लोक है। तो ये हमें समझना है कि स्क्रिप्चर्स जो है क्या बता रही है। शास्त्र बता रहे हैं इत चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वेदव्यास जी जिन्होंने सब पुराण को लिखा है बता रहे हैं कि जितने भी अवतारों का मैं वर्णन कर रहा हूँ पर स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण। ये शास्त्र जो है बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे श्लोक हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी टाइम का हमारे पास लिमिटेशन है। तो शास्त्रों के प्रमाण से हम ये समझ सकते हैं कि शास्त्र ये बता रहे हैं कि सबसे जो परम ईश्वर है, परम ब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण है। इवन सिर्फ हिंदू स्क्रिप्चर्स नहीं,
इवन अगर हम दूसरे रिलीजन के स्क्रिप्चर्स में जाएंगे, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पर उनके सिख के 10 गुरु हैं उनमें। तो छठे गुरु जो है गुरु अर्जुन देव, वो बता रहे हैं 1205 प्यार के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब में बोल रहे हैं अच्युत परम ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी मधुसूदन दामोदर स्वामी। ये गुरु ग्रंथ साहिब में बताया गया है कि परम ब्रह्म परमेश्वर करके भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। तो ऐसे कई सारे हज़ारों श्लोक के शास्त्र गुणगान कर रहे हैं कि मतलब ओपनली बता रहे हैं कि भगवान जो है वो श्री कृष्ण है, भगवान हरि, भगवान नारायण। तो ये चीज़ हमको समझना होगा। और अगर हम लोग जो है वो खुश रहना चाहते हैं, अगर हम लोग जो है सेटिस्फाई रहना चाहते हैं, तो हमको भगवान की सेवा जो है करनी होगी। भगवान जो है वो सब्सटेंस है और भगवान का जो धाम है वो सब्सटेंस है। और हम लोग एक्चुअली यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जब खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं शैडोज़ के अंदर, तो जो है हम लोग दुख पाते हैं। तो जैसे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ही जो है कोई भी खुशी नहीं है। हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ अच्छा स्मेल करते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ अच्छा टच करते हैं, तो हमें एट सम लेवल हैप्पीनेस तो है, खुशी जो है महसूस होती है। तो मटेरियल वर्ल्ड की हैप्पीनेस जो है उसको ये बताया गया है कि जो मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पीनेस है वो टेम्पररी है और शॉर्ट है। एक तो कम है, कम समय के लिए है, और साथ ही में टेम्पररी है, यानी कि परमानेंट नहीं है, किसी वक्त जो है जा सकती है। जैसे एक बार एक राजा थे, राजा जो है उन्होंने अपने सब जो राज्य के थे उनसे बोला कि आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ गिफ्ट करो तो जब मैं दुखी हूँ उसको देख के मैं खुश हो जाऊँ, और जब मैं खुश हूँ उसको देख के मैं दुखी हो जाऊँ। तो सब लोगों ने अलग अलग चीज़ें जो है गिफ्ट करी, लेकिन एक व्यक्ति आया, उसने एक अंगूठी गिफ्ट करी राजा को। अंगूठी पर लिखा हुआ था कि ये वक्त भी निकल जाएगा। तो जब वो खुश होगा तो वो देखेगा कि ये वक्त भी निकल जाएगा, मतलब खुशी है तो दुख भी आएगा। और अगर जब वो दुखी होगा तो उसमें फिर से पड़ेगा ये वक्त भी निकल जाएगा, इसका मतलब है कि वो खुश भी होगा। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो हैप्पीनेस है उसको इसी प्रकार कंपेयर किया गया है। और साथ ही साथ में जो है ये चीज़ बताई गई है, श्रील प्रभुपाद जी हमारे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया करते थे कि हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ कंपेयर्ड टू लिकिंग हनी फ्रॉम द टिप ऑफ अ नाइफ। आप जैसे आप लोग जो है ऐसा इमेजिन कीजिए कि नाइफ़ है, नाइफ़ की टिप के ऊपर जो है शहद की बूंद है। तो अगर आप शहद की बूंद को आप चाटेंगे तो आपको शहद का स्वाद तो आएगा, लेकिन क्या होगा, जीभ कट जाएगी। तो वैसा ही जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पीनेस को बताया गया है। इवन एक और एग्जांपल देते हैं श्रील प्रभुपाद, बोलते हैं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है उसको पानी में डुबा के रखा जाए, कंटिन्यूसली उसको पानी में डुबा के रखा है और एक पल के लिए उसको बाहर निकाले, तो उसकी ऐसे वो सांस लेगा, ऐसे करके जब वो सांस लेगा और दोबारा उसको डुबा दे, तो वो जो एक पल है वो मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पीनेस को कंपेयर किया गया है। तो इट मीन्स इट इज़ टेम्पररी। तो ये चीज़ है, ये हमको समझना है। और साथ ही साथ में ये भी चीज़ हमको समझना है कि जो मटेरियल ब्यूटी है ये पैकेजिंग के ऊपर डिपेंड करती है। हम लोगों को बाहर से जो सुंदर लगता है, अंदर से उसका रियल स्वरूप कुछ और ही है। जैसे फॉर एग्जांपल चिप्स का पैकेट, लेज़ का पैकेट आपने देखा होगा, उसमें गैस भरते हैं वो लोग, तो इतना ऊपर लगता है, और उसमें चिप्स कितना होता है, इतना मात्रा का चिप्स होता है उसमें। ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में कोई स्त्री है, उसको कोई पुरुष बहुत आकर्षित लगता है, कोई पुरुष है उसको स्त्री बहुत सुंदर लगती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है इट इज़ 1 इंच डीप ब्यूटी। 1 इंच डीप जो है ये ब्यूटी है। अंदर जो है मलमूत्र ही भरा हुआ है, अंदर जो है बोन्स, मसल्स, ये सब भरा हुआ है। तो इसके प्रति जो हम 1 इंच की स्किन है, इसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। और इवन एक बताया जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड में इवन इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, तो हम फुल्ली कर भी नहीं सकते। जैसे मान लो बताया जाता है आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, ये 4 चीज़ें जो है ये हर व्यक्ति करता है। अगर हमको इनको भी इंजॉय करना है, ये भी हम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमें खाना है तो हम कितना खा सकते हैं, एक 5 रोटी 10 रोटी, या मान लो आप लोगों का जैसे मान लो पिज़्ज़ा खाओगे, बर्गर खाओगे, कितना खा लोगे, एक क्वांटिटी के बाद आपका भी जो है बस हो जाएगा। लेकिन हाथी जो है वो हर दिन 100 किलो खाता है, अपने वज़न के बराबर का खाता है, तो खाने में तो वो हमसे बेटर कर रहा है। अगर मान लो स्लीपिंग है तो हम कितना घंटा सो सकते हैं, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा। लेकिन पोलर बियर जो है वो 6-6 महीना सोता है, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम उस मामले में भी जो है हम इवन जानवरों से भी पीछे है। जानवर जो है मटेरियल सुख जो है हमसे ज़्यादा अच्छे से जो है भोग रहे हैं। अगर मान लो बच्चे पैदा करना है तो हम कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, 8, 10, 15। चींटियाँ जो हैं एक टाइम पे 100, 150, 200 अंडे देती हैं, तो एक टाइम पे इतने बच्चे जो है वो पैदा कर सकती हैं। इवन डिफेंडिंग, हमारा शरीर जो है ये डिफेंडिंग के लिए भी नहीं बना। जैसे मान लो कोई टोटोइज़ है, कोई टर्टल है, तो उसके ऊपर शेल होता है, वो अपने आप को बचाव कर सकता है। अगर हम लोग जो है अगर इतना सा कट लग जाता है तो हमें पेन होने लगता है, तो हमारा शरीर जो है उसके लिए भी नहीं बना।
मेरे शिक्षा गुरु है भक्ति करुणामय बनमाली महाराज, उनका बुक है, तो उसमें वो कहते हैं ह्यूमन बॉडी इज़ अ थिंकिंग मशीन। तो इंसानी शरीर जो है वो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के लिए नहीं है, ये तो बेसिक फीचर्स है। लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है इट इज़ अ थिंकिंग मशीन। ये सोचने के लिए मिला है हमको कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारा जो है क्या पर्पस है, हमारा आइडेंटिटी क्या है, हम कौन है, हमारा संबंध किन के साथ में है, ये समझने के लिए हमको मिला है। और भगवान जो है उनके साथ में हमें अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना है। इनके साथ में जब हम रिलेशन बिल्ड करेंगे तो जाके हम रियल हैप्पीनेस को जो है अनुभव कर पाएंगे। तो भगवान जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं तो हम बोलेंगे अगर हम भगवान के दास बने, जैसे आपने बताया कि जीवात्मा का स्वरूप है कि भगवान का दास है, चैतन्य चरितमृत में बताया गया जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो अगर भगवान जो है अगर हम उनके दास है तो हम भौतिक जगत में वो देखते हैं कि जो जैसे बॉस लोग होते हैं, बॉस होते हैं, वो अपने सर्वेंट्स का बहुत जो है एक्सप्लोरेशन करते हैं, लेकिन भगवान जो है वो अपने दासों को अपने से ऊपर स्थान देते हैं। ऐसे महाभारत जैसे मैंने बताया युद्ध हो रहा था तो अर्जुन इतना शोर था, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए लाखों करोड़ों लोग जो है युद्ध कर रहे हैं, तो कितना शोर होगा उस जगह के अंदर। तो उस जगह के अंदर जो इतना शोर है वहाँ पर अगर आपको अब अपने सारथी को गाइडेंस देना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो उसमें आप वर्बली बताओगे तो सुनाई नहीं देगा। तो अर्जुन अगर राइट जाना है तो भगवान ने अर्जुन को बोला हुआ था कि अगर राइट जाना है तो मेरे राइट कंधे पे लात मारो, लेफ्ट जाना है मेरे लेफ्ट कंधे पे लात मारो, अगर आपको रुकना है तो बीच के कंधे पे लात मारो। तो भगवान जो परमेश्वर है, तो भगवान जो है जो परमेश्वर है वो अपने भक्तों से लात खा रहे हैं, ये भगवान का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो अपने भक्तों से जो है वो इतना प्रेम करते हैं। ऐसे बताने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर। भगवान जो है श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं कि वैसे तो लोग समझते हैं, मतलब कैंटो 10 चैप्टर 9 वर्स 20 के अंदर भगवान बता रहे हैं कि आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। लोग समझते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बट आई एम बाउंड बाय द लव ऑफ माई प्योर डिवोटीज। मैं अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम से बंधा हुआ हूँ, और जैसा मुझे अपने शुद्ध भक्त चलाते हैं मैं वैसा ही चलता हूँ। तो ये भगवान अपने भक्तों के साथ बंध जाते हैं। तो यशोदा मैया जो है उन्होंने भगवान को बांध दिया, तो ये भगवान हैं जो अपने भक्तों से बन जाते हैं। तो और भगवान बता रहे गीता के अंदर कौन्तेया प्रति जानहि न नाम में भक्त्या प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र तुम ये घोषणा कर दो कि जो मेरे भक्त हैं उनका कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान के अगर आप भक्त बनेंगे तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान को सरेंडर करने में जो है हमारा नुकसान है। भगवान जो है अपने भक्तों को अपने सर के ऊपर स्थान देते हैं, अपने से भी ऊपर स्थान देते हैं। तो ऐसे भगवान के प्रति हम सरेंडर करेंगे और अपने डिज़ायर्स को हम सही जगह पे लगाएंगे तो जो है हम रियल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। कोई क्वेश्चंस है आपके? क्वेश्चंस अगर किसी का है तो मैं ले सकता हूँ। 5 मिनट्स वी कैन टेक क्वेश्चंस। जो आपने शुरू में 6 क्वालिटीज बताई थी वो तो देवी देवताओं में भी हो सकती है। देखिए देवी देवताओं में हो सकती है, लेकिन मैंने क्या बताया कि 6 क्वालिटीज़ है, लेकिन साथ में मैक्सिमम लिमिट तक। मतलब कोई व्यक्ति पावरफुल है तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सुंदर है तो सबसे ज़्यादा सुंदर है, नॉलेजेबल है तो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो कुछ मात्रा में किसी किसी व्यक्ति में हो सकती है, लाइक देवी देवताएं भी जो है, और साथ में टाइम इमेमोरियल तक रहती हैं। देवी देवता अमर नहीं होते, देवी देवताओं का भी, इवन ब्रह्मा जी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी भी जो है उनका भी एक टाइम जो है, उनका जो लाइफ स्पैन है वो इतना है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसा बताया जाता है अगर हम ह्यूमन ईयर्स में कैलकुलेट करें तो 3.11 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स ये ब्रह्मा जी का एज है। लेकिन फिर भी उनकी भी मृत्यु होती है, उनका भी अंत होता है। लेकिन भगवान जो है, मैं ये डेफिनेशन शास्त्रों में ये बताई गई है कि 6 क्वालिटीज़ जो है वो एक व्यक्ति में एक साथ होनी चाहिए, वो भी टू इट्स मैक्सिमम लिमिट्स, कि सारी की सारी जो क्वालिटीज़ है वो मैक्सिमम लिमिट में होनी चाहिए। और साथ ही साथ में जो क्वालिटीज़ है वो टाइम इमेमोरियल के लिए रहनी चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए, वो कभी घटनी नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं बहुत बार देवी देवता जो है उन्हें श्राप मिला और वो नीचे भौतिक जगत में आ गए, तो इसीलिए घटनी नहीं चाहिए। तो ये भगवान इसका डेफिनेशन है। तो ठीक है, एनी कोई और क्वेश्चन? ठीक है, एंड करते हैं प्रभु इसको। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। मुझे बहुत सुंदर क्लास हुई। और लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
अगला टॉपिक भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला टॉपिक है, अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं? जैसे हम आजकल देखते हैं हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, हिंदुओं में भी अलग अलग हो चुके हैं, तो ऐसा क्यों है? उसमें भी हम बहुत डीप तक जाएंगे, जैसे प्रभु जी ने यहाँ से बताया। हर एक चीज़ पे हम लोग साइंटिफिक भी गए, लॉजिकली भी गए, उसको अगले टॉपिक में भी हम लोग ऐसे करें। सो रिक्वेस्ट है आप सब लोग कृपया करके आएँ। हरे कृष्ण।